After parenchyma, the other permanent tissue, it is the collenchyma. Collenchyma is the second simple permanent tissue. So let us discuss about collenchyma. Collenchyma, it is also made up of living cell. ये भी जो है एक तरह से living cell से ही मिलकर बना होता है. Just same as to parenchyma, cells of collenchyma are living. पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं. Features of collenchyma. One of the features wall is made up of living cells. Cells are living means cytoplasm, protoplasm is present. Protoplasm is present. The next is a lack of intercellular space. No or place or release or living. No or very little intercellular space. The intercellular space which is found in parenchymatous tissue. Parenchyma में जो है intercellular space पाया जाता है. बट कोलेनकाइमा में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम अमाउंट में होता है. नेग्लिजिबल अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है. एंड द थर्ड फीचर इन्वॉल्व अ लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल. large central vacuole is present. Same as to parenchyma, the collenchyma also contain a large central vacuole. सेंटर में पाया जाने वाला इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म and periphery. और peripheral region. पेरिफेरल रीजन में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट. क्यों पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. बड़ा सा जो है सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है. सेंटर में वैक्यूल जो है बड़ा सा एक ही होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है. इसी वजह से सारे अदर कंपोनेंट इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस get moved towards the periphery of the cell. So we draw leaving side this side of the cell. So the cell wall, inside the cell wall, the large centrally placed vacuole. This is the large centrally placed vacuole. And due to central vacuole, the nucleus is found at the side of cell. Cell के किनारे पर nucleus आ जाता है. And vacuole.
this one is the nucleus. तो वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है किनारे पे चला जाता है एंड साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे चले जाते हैं। So these are the common features. Living cell, no or sorry, this feature is different from parenchyma because in parenchyma there is sufficient amount of intercellular space, but here a little or no intercellular space present in the कोलेनकाइमेटस टिश्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल वॉल जो है आपस में एक दूसरे से ऐसे एडजस्ट है जिसकी वजह से कोई भी बीच में कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट फीचर है जिस पैरेंकाइमेटस टिश्यू के। एंड this feature is also similar to parenchyma, but here another feature which makes the colenchyma different from parenchyma. Parenchyma से colenchyma को different बनाने वाला एक दूसरा feature भी होता है, that is the thickening of cell wall. Thickening of cell wall at corner of cellulose. The cell wall becomes thick at corner, which is the thickening that thickening with the help of cellulose. The thickening of cellulose at corner over the cell wall is a special feature of colenchyma. colenchyma का ये स्पेशल फीचर है जो अदर जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं उनसे ये कोलेनकाइमा जो है डिफरेंट होता है इसी सेलुलोज के थिकनिंग की वजह से एट कॉर्नर पे ये पाया। एंड ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ सेलुलोज एट कॉर्नर the function of colenchyma is also very different from the other plant tissue. Other plant tissue से इसका फंक्शन भी जो है स्पेशल होता है और ये स्पेशल फीचर जो फंक्शन इज आल्सो ड्यू टू दिस फीचर, इसी फीचर की वजह से इसका स्पेशल फंक्शन भी होता है। So before discussing about the function, let us discuss about the location of colenchyma. Location. Location means where they are found in plant's body. Plant body में कहाँ पे पाए जाते हैं? So colenchyma is found only in dipole. Location about the location. It is found in or found below epidermis of state petiole and leaf. Being found below epidermis or state petiole and leaf of dipole plant. So about the dicot and monocot, we have also already discussed in previous lecture that plants are classified into two categories, dicot and monocot. Mostly angiospermic plants are broadly classified into two categories.
ये दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन प्राइमरली जो प्लांट किंगडम दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, जिसमें एक जो होता है आपका क्रिप्टोगैमी, दूसरा फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को अगेन जो है डिवीजन में क्लासिफाई किया जाता है, 3 डिवीजन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये तो लोअर प्लांट हो गए जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देती है। और हायर प्लांट वाला जो फेनरोगैमी है, तो फेनरोगैमी को अगेन दो डिवीजन में क्लासिफाई किया गया कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में। तो एंजियोस्पर्म को अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये दो क्लास जो है इसमें वन ऑफ द क्लास इज द क्लास ऑफ डाइकॉट, जिसको हम डाइकोटिलिडनी बोलते हैं, दूसरा मोनोकोटिलिडनी। तो डाइकॉट मोनोकॉट जो है सीड में प्रेजेंस ऑफ कोटिलिडन के बेस पर बोला जाता है। डाइकॉट कंटेन 2 cotyledon as in gram seed you have you can observe 2 cotyledon or 2 leaf in seed after removing the seed pod। seed pod को रिमूव करने के बाद दो सीड लीव्स दिखाई देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जितने भी पल्सेस सीड होते हैं, दाल वाले सीड, उसमें दो पार्ट होते हैं, मतलब वो डाइकॉट होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जो डाइकॉट होते हैं, उनमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी आपको बताया गया कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट में, लीफ में, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, जैसे बनाना जो होता है वो मोनोकॉट। तो इस तरह से डाइकॉट एंड यूनोकॉट दो कैटेगरी होता है प्लांट का। जब भी आप प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीफ, स्टेम एज वेल एज रूट, उसको ऑब्जर्व करने के बाद तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डाइकॉट में। तो देखा जाए तो कोलेनकाइमा की बात की जाए तो कोलेनकाइमा इज ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में ही ये पाए जाते हैं और इस जगह पे पाए जाते हैं डाइकॉट प्लांट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, पेटियोल एंड लीव्स। मींस मोस्टली जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट मींस द पार्ट ऑफ प्लांट above the soil और सॉरी above the ground, ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, उसी पार्ट में ये कोलेनकाइमा पाए जाते हैं प्लांट बॉडी में। स्पेशली इस प्लांट में डाइकॉट प्लांट में ही पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट में ये एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज अबाउट द लोकेशन। और देखिए यहाँ ये वाला पिक्चर, क्लीनिंग ऑफ सेल वॉल एट द कॉर्नर। इफ यू ऑब्जर्व दिस इज द कॉर्नर, so at the corner there is thickening of cellulose, cellulose thickening takes place, and in presence of cellulose thickening it becomes different or specific from another plant tissue। जहाँ पे दिख रहा है आपको cell wall thickening at corner, or we can say that cell wall thickening, in other words also called as deposition of cellulose at the corner of cell wall। cell wall के corner पे ये जो है cellulose का deposition दिखाई देता है, cellulose deposition at corner पे जो है cellulose का deposition दिखाई देता है, मीन्स cellulose इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी सेलुलोज के इकट्ठा होने की वजह से उनका जो सेल वॉल होता है इट बिकम्स मोर थिक इन कंपैरिजन टू द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से ज्यादा थिक। नाउ अबाउट द फंक्शन। सो द कॉमन फंक्शन
It is to provide mechanical support. Provide mechanical support to plant body due to thick cell wall. Thick cell wall होने की वजह से ये प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, विच इज द कॉमन फीचर इन डाइकॉट प्लांट. डाइकॉट प्लांट मोस्टली जो है श्रब्स और सॉरी ट्री के कैटेगरी पे ज़्यादा होते हैं. तो ऐसे केस में उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज बॉडी साइज. उनको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. द सेकेंड फंक्शन इट इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. Due to extra deposition of cellulose at corner of cell wall, this property of parenchyma provide the flexibility to the plant body of dicot plant. Dicot plant को जो है ये flexibility provide करने का काम करते हैं. Provide flexibility to leaf, petiole and branches are straight. So this feature or this property of parenchyma or plant or the presence of parenchyma in plants allow the plants or plant part to become bent without break. बिना ब्रेक हुए जो है इनको बेंड किया जा सकता है. either to the leaves or petiole or stem. लीफ को भी नीचे की तरफ झुका देते हैं तो ब्रेक नहीं होते हैं. तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो बीच से क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ब्रेक होकर के अलग हो जाते हैं. बट ये ब्रेक होकर अलग नहीं होते हैं. दे रिमेन ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी. फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये फीचर उसमें देखा जाता है डाइकॉट प्लांट में. और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ parenchyma. सो दिस इज ऑल अबाउट द parenchyma. एंड नाउ द नेक्स्ट इट इज अबाउट द sclerenchyma. तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे sclerenchyma. नाउ अबाउट द sclerenchyma. तो sclerenchyma जो होता है इट इज आल्सो द सिंपल परमानेंट टिश्यू. ये भी एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है. अब इसके पहले फीचर्स की बात करते हैं विच मेक इट डिफरेंट टू द अदर प्लांट टिश्यू. अदर प्लांट टिश्यू से जो इसको डिफरेंट बनाता है. फीचर इन्वॉल्व या मोस्टली डेड सेल. ये जो है डेड सेल से बने होते हैं. sclerenchyma कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. यंग स्टेज में ये जो है लिविंग होते हैं बट एट मैच्योरिटी इट बिकम्स डेड. ये जो है डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड द सेल वॉल as in parenchyma the deposition or extra deposition take place of cellulose and only to the corner. But here the cell wall has extra deposition of lignin and along with the cell wall or throughout the cell wall. पूरे सेल वॉल में जो है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन पाया जाता है. मींस आई सी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ sclerenchyma tissue. So we can find the deposition of cell wall is throughout the cell wall and this is the deposition.
Here, the deposition of lignin. Due to the position of lignin throughout the cell wall, throughout the cell wall, the lumen of cell means where the cellular component or protoplasm exists. जहाँ पर प्रोटोप्लाज्म सेल का एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ द सेल. सो द ल्यूमेन ऑफ सेल बिकम्स narrow lumen. So here the next feature involves the cells are elongated. Cells are elongated with narrow lumen and this narrow lumen it is due to the presence of or thickening or deposition of lignin throughout the cell wall. पूरे सेल वॉल में जो है लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से ये जो ल्यूमेन होता है इसका नैरो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है. एंड अदर फीचर इन्वॉल्व नो इंटरसेलुलर स्पेस. No intercellular space. Space जो है intercellular space is not present, and the cell wall thickening is also becomes black at some places. Means कुछ places पे जो है cell wall का deposition यहाँ पे जो है वो absent होता है, and at that places they produce the pits. ये जो है बनाते हैं pits. इसको बोलते हैं pit. And pit allow the exchange of substances between the cell. सेल के बीच में जो है सब्सटेंसेस का एक्सचेंज ये पीट्स के थ्रू होता है. मीन्स ये स्केलेटन काइमा में पीट्स ही होते हैं जो लिग्निन इज इम्परवियस सब्सटेंस, इम्परवियस टू वाटर. मोस्टली ये वाटर के लिए इम्परवियस होता है, वाटर को रोक के रखते हैं. तो ऐसे केस में वन सेल टू अदर सेल वाटर कैसे मूव कर सकता है, तो ये मूव करता है मोस्टली थ्रू पीट्स. ये पीट्स के थ्रू ही मूव करता है. अगला फीचर इन्वॉल्व होता है, तो ये जो है अब आगे बात करते हैं इसके लोकेशन की. लोकेशन कहाँ होता है प्लांट बॉडी में. So mostly the skeletal chyma are found at the places of at hard places in plant body. Plant body में जहाँ पे भी hard places होते हैं वहाँ पर सभी जो है ये skeletal chyma present होते हैं. In seed, hard seed, hard seed में पाए जाते हैं. In fibrous plant, the fiber in the plant contain the skeleton chyma. फाइबर एडिंग प्लांट जितने भी होते हैं लाइक जूट, हेम्प, ये सभी जो है इसमें फाइबर जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो स्केलेटन काइमा ही करता है. स्केलेटन काइमा की वजह से वो फाइबर बनते हैं जो स्ट्रेंथ में होता है. एंड आल्सो इन कोकोनट, coconut husk is also made up of skeletal chyma. And on the basis of feature of skeletal chyma, the other location involved in vascular tissue. The vascular tissue also contain, vascular tissue means xylem and phloem. Xylem and phloem में one of the component is skeletal chyma, which is in the form of fiber. So यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना है that skeletal chyma has two type of cell. skeletal chyma में दो तरह के सेल होते हैं. तो type of cell की बात करें, type of skeletal chyma cell. There are two types of skeletal chyma cell.
One is sclerenchyma fiber, and the other is scleretes. So sclerenchyma fiber it is elongated cell, ये लंबे सेल होते हैं मोस्टली जो है फाइबरस जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें sclerenchyma fiber एग्जिस्ट करते हैं and the other which is sclerete it is hard and solid and in short shape का जो शेप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ये लंबे नहीं होते लंबे शेप नहीं होते इनको मदरबोर्ड में स्टोन सेल भी बोलते हैं स्टोन सेल they are also known as stone cell. They provide grittiness to the plant body. Plant body को ये grittiness provide करने का काम करते हैं sclerates. जैसे आप देखे होंगे pears, जो नाशपाती होता है pears, उसमें grittiness छोटे छोटे जो है stone like substance पाया जाता है so that grittiness is due to the sclerates. Sclerates की वजह से ही वो grittiness होता है. उसके अलावा जितने भी seed का covering जो hard होता है like nuts उसमें स्क्लेरेट्स ही पाया जाता है एंड नेक्स्ट द फंक्शन and the function of sclerenchyma it is to provide mechanical and